Dear students, in the previous class we have discussed about the different organelles present in the cell. That is, we were talking about the mitochondria, the Golgi complex. We have completed with lysosomes, vacuoles and all such organelles. We have also discussed about the very important organelle present in the plant cells, which was plastids. So after discussing all these organelles, now we are moving to those structures which help in locomotion or which help in movement of the cell. ऐसे भी स्ट्रक्चर्स होते हैं जो सेल के मूवमेंट में या तो फिर सराउंडिंग फ्लूइड के मूवमेंट में हेल्प करते हैं. तो ऐसे स्ट्रक्चर्स में इंक्लूड होता है सीलिया एंड फ्लैजेला. व्हाट इज इंक्लूडेड? सीलिया एंड फ्लैजेला. So there are both prokaryotic cilia and flagella as well as eukaryotic cilia and flagella. मतलब eukaryotic cells में भी cilia होता है और eukaryotic cells में भी flagella like structure होता है. जैसे कि हम sperm cells की बात करते हैं तो sperm cells are having a tail like structure at the end which is considered to be a flagella like structure. तो cilia and flagella are present even in the eukaryotic cells. So let us talk about first of all what are cilia and flagella. So cilia and flagella, these are hair-like outgrowths of the plasma membrane. So from the plasma membrane of the cell, a thin hair-like extension will develop and this extension will be cilia or flagella. So these are outgrowths. Outgrowths मतलब बाहर की तरफ ग्रो होने वाला एक ऐसा स्ट्रक्चर जो थिन थ्रेड लाइक या हेयर लाइक है एंड इट हैज डेवलप्ड फ्रॉम व्हाट? इट इज एन एक्सटेंशन ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन से ही एक्सटेंड होता है. इसीलिए सीलिया एंड फ्लैजेला दे आर कवर्ड बाय द प्लाज्मा मेम्ब्रेन इटसेल्फ. इफ वी टॉक अबाउट सीलिया, इफ दे आर मेनी इन नंबर उसे सीलिया कहते हैं. अगर सिंगुलर एक ही होता है तो सीलियम कहते हैं. सो सीलिया आर शॉर्टर इन साइज एंड आर वर्किंग लाइक ओड्स. किसकी तरह काम करते हैं? ओड्स की तरह. एक इजी एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ. ओड्स मतलब क्या? जैसे कि आप एक छोटी सी बोट में बैठे हो and you are using that instrument by which you push the water backward, right? आप दोनों तरफ से क्या करते हो? पानी को पीछे की तरफ धक्का मारते हो and therefore the boat moves what? Forward. तो oaring is a method like in which that substances are being drawn back behind so that the cell can have a forward movement. तो ऐसे movement के लिए होता है cilia. तो cilia जो है वो कैसे काम करता है? It is working like the oats and this helps in either the movement of the cell or movement of surrounding फ्लूइड. किसका हेल्प करता है? सीलिया जब प्रेजेंट होता है तो आइदर सेल मूव हो सकता है या तो फिर सेल के सराउंडिंग जो फ्लूइड्स हैं उन्हें मूव करने के लिए भी सीलिया होता है. जैसे कि सीलिया इज प्रेजेंट इन द केस ऑफ फेलोपियन ट्यूब्स इन द फीमेल्स. तो यहाँ पे सीलिएटेड सेल्स क्या करते हैं? तो यहाँ के जो सीलिएटेड सेल्स हैं वो एग जो होता है वो तो नॉन मोटाइल होता है, वो खुद से मूव हो नहीं सकता. तो ये सारे सीलिया जो हैं उनके ये ओर लाइक मूवमेंट की वजह से वो जो एग है वो फेलोपियन ट्यूब में फॉरवर्ड की तरफ ट्रैवल करता है. सो एग ट्रैवल्स फॉरवर्ड ड्यू टू व्हाट? ड्यू टू द सीलिएटेड मूवमेंट ऑफ द सेल. and this ciliated movements will be like the oaring a boat. Just like you are oaring a boat,
Same way, this type of movement will be observed by which the egg is being pushed forward. या तो फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में भी सीलिया होता है, तो यहाँ पे सीलिएटेड सेल्स क्या करते हैं, तो कभी हमें कफ या बहुत ही ज्यादा म्यूकस एक्यूमुलेट हो जाता है, तो all these ciliated cells push the mucus towards your mouth so that you can throw it out. So all the cilia, like millions of cilia in the respiratory tract cells, epithelial cells के पास होते हैं, all of them are showing such a movement कि वो जो mucus है वो कहाँ पे आप remove कर सकते हो, you can take it in the mouth and then after you can throw it out. तो ऐसा होता है ciliated movement. जबकि हम flagella की बात करें तो flagella is comparatively, flagella is longer and mainly helps in मूवमेंट ऑफ द होल सेल. मतलब अगर पूरे सेल को ही एक से दूसरी जगह शिफ्ट होना हो तो ज्यादा यूजफुल क्या रहता है, फ्लैजेला रहता है. वापिस एक बार देखो, सीलिया जो है इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट्स ओन, मतलब सेल के मूवमेंट के लिए भी एज वेल एज सराउंडिंग फ्लूइड के मूवमेंट के लिए भी. जबकि फ्लैजेला जब प्रेजेंट होता है तो फ्लैजेला थोड़ा लॉन्गर होता है सीलिया से, और फ्लैजेला जो होता है इतने ज्यादा नंबर में नहीं होता. फ्लैजेला कैन बी 1 or 2 or 3, जबकि सीलिया जो है दे कैन बी thousands and thousands ऑफ सीलिया विथ 1 सेल. तो दोनों थोड़े अलग होते हैं स्ट्रक्चर्स में, पर दोनों का अल्ट्रा स्ट्रक्चर, इंटरनल स्ट्रक्चर जो है वो एकदम सिमिलर है. और यहाँ पे याद रखना, दे आर ऑल्सो फाउंड इन, फ्लैजेला की बात कर रहे हैं, दे आर ऑल्सो फाउंड in prokaryotic cells, but they are different than eukaryotic cells. मतलब प्रोकैरियोटिक सेल्स में भी फ्लैजेला होता है, पर वो फ्लैजेला जो है वो यूकैरियोटिक सेल के अल्ट्रा स्ट्रक्चर से, फ्लैजेला के स्ट्रक्चर से बहुत ही डिफरेंट है. सो नाउ स्टूडेंट्स, वी आर टॉकिंग अबाउट द अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. अभी तक तो हमने बात कर ली कि उनका फंक्शन क्या रहता है, ठीक है, कैसे होते हैं दिखने में और उनका फंक्शन क्या होता है, ये हमने बात की. अब हम बात कर रहे हैं अबाउट अल्ट्रा स्ट्रक्चर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला. The cilia and flagella, both of them are enclosed by a plasma membrane. Both are enclosed, मतलब आप सबसे ऊपर जो बाहर पिंक कलर की बाउंड्री देख रहे हो वो क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन. बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स तो है, पर ये ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स एनक्लोज्ड है, कवर्ड है, किससे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन से, क्योंकि वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन का ही एक्सटेंशन है, इसीलिए दे आर एनक्लोज्ड विद द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. सेकेंडली इंपॉर्टेंट चीज ये है दैट द सेंट्रल कोर ऑफ सीलिया एंड फ्लैजेला इज नोन एज एक्सोनीम. द सेंट्रल कोर ऑफ cilia and flagella is known as axoneme. यहाँ पे सेंट्रल कोर मतलब क्या, जैसे कि मान लो ये एक फ्लैजेला का स्ट्रक्चर है, हम जब फ्लैजेला का क्रॉस सेक्शन ले रहे हैं, राइट, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पे क्रॉस सेक्शन लिया, तो आप देख सकते हो कि ये जो बीच का पार्ट है, सेंट्रल पार्ट, क्योंकि हमने क्या किया है, उसको कट कर दिया है बीच में से, तो हमने क्रॉस सेक्शन लिया है. क्रॉस सेक्शन लेके आप ये जो पार्ट बीच में देख रहे हो, दैट इज व्हाट, एक्सोनीम. क्या कहेंगे उसे, एक्सोनीम. और ये एक्सोनीम के अंदर क्या प्रेजेंट है, द एक्सोनीम हैज नंबर ऑफ पैरेलली अरेंज्ड माइक्रो ट्यूब्यूल्स. यहाँ पे मैं लिख देती हूँ नंबर ऑफ मतलब 1 2 नहीं, ज्यादा,
many microtubules arranged parallelly to each other. बहुत सारी microtubules होंगी जो parallelly arranged होंगी. आप यहाँ पे थोड़ा डायग्राम से समझिए. ये जो आपको व्हाइट कलर के सर्कल्स दिख रहे हैं, ये व्हाइट कलर के सर्कल्स जो हैं, ये है माइक्रोट्यूब्यूल्स. अब माइक्रोट्यूब्यूल्स आप इस तरफ से देख रहे हो तो आपको सर्कल दिख रहा है, बट एक्चुअली वो क्या है? ऐसा ट्यूब, सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर होगा, रॉड लाइक स्ट्रक्चर जो पूरा एक्सटेंड होगा. तो ये जो है माइक्रो, मतलब ये जो पूरा एक फ्लैजेला का अल्ट्रा स्ट्रक्चर है, उसमें पैरेलली अरेंज क्या है? Microtubules. Parallelly are arranged the microtubules in the structure of the flagella. तो ये आपको यहां से सर्कल दिख रहा है, बट एक्चुअली इट इज अ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर. बहुत सारी ऐसी पाइप्स हैं जो सीधे सीधे अंदर पैरेलल टू द एक्सिस ऑफ द होल फ्लैजेला चल रही है. ठीक है, तो हम आगे इसकी बात करते हैं. तो हम बात कर रहे हैं अल्ट्रा स्ट्रक्चर की. तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में हमने सबसे पहले क्या कहा? दैट दे आर एनक्लोज्ड बाय द स्ट्रक्चर विच इज नोन एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. तो हम यहाँ पे लेबल कर लेते हैं इसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन. ओके, सो आउटर मोस्ट लेयर दैट इज गोइंग टू बी द प्लाज्मा मेम्ब्रेन. अब क्या देखते हैं? तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर मैंने कहा दैट द होल सेंट्रल पार्ट इज नोन एज द एक्सोनीम. क्या कहेंगे? सेंट्रल कोर को कहेंगे एक्सोनीम. अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया कि हम अगर फ्लैजेला का क्रॉस सेक्शन लेंगे तो हमें पूरा ही एक सेंटर में जगह देखने को मिलेगी, और ये जो पार्ट है सेंटर का, उसे हम क्या कहेंगे? एक्सोनीम. फिर हमने कहा कि एक्सोनीम में क्या होता है? तो एक्सोनीम में होते हैं पैरेलली अरेंज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स. क्या प्रेजेंट है? पैरेलली अरेंज्ड माइक्रोट्यूब्यूल्स. तो ये जो सारे माइक्रोट्यूब्यूल्स, मतलब व्हाइट जो आपको स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं, वो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, और वो पैरेलल इसीलिए अरेंज है क्योंकि ये एक पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, सिलेंड्रिकल, और उसके अंदर हर एक माइक्रोट्यूब्यूल जो है वो सिलेंड्रिकली, मतलब पैरेलली टू द लॉन्ग एक्सिस ऑफ द होल फ्लैजेला, वैसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा. तो ये हमने बात की. अब हम आगे बढ़ते हैं. दैट where means how many such microtubules are present. So there are 9 pair of microtubule doublets located at पेरीफेरी. कहां पे लोकेटेड है? पेरीफेरल रीजन में. तो पेरीफेरी मतलब ये जो बाउंड्री है, वहां पे क्या प्रेजेंट है? वहां पे प्रेजेंट है माइक्रोट्यूब्यूल्स. हाउ मेनी पेयर्स? 9 पेयर्स. यू कैन सी ओवर हियर 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9. 9 पेयर्स ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल. पर यहाँ पे मैंने वर्ड क्या यूज किया है? डबलेट्स. डबलेट्स. डबलेट्स इसीलिए बिकॉज दे आर प्रेजेंट इन अ पेयर ऑफ 2. दो की पेयर में प्रेजेंट है, तो एक होगा ए और एक होगा बी. वैसे दो की पेयर में पेरीफेरी में माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स आर अरेंज्ड एंड देयर आर 2 microtubules which are located in the center. So 9 are located in the periphery, 9 pairs, and 2 are located in the center. So 2 microtubules are arranged in the center. They are arranged in the center. तो यहाँ पे क्या होगा कि ये जो आएंगे इन्हें हम कहेंगे पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स. क्या कहेंगे? पेरिफेरल माइक्रोट्यूब्यूल डबलेट्स. और वो कितने हैं? 9 पेयर्स. और यहाँ पे जो बीच में है वो आएगा सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल. The central 2 microtubules are interconnected to each other by a bridge
and they are also connected and they are properly enclosed in a structure which is called central sheath. ये जो पिंक कलर का स्ट्रक्चर है इसे कहा जाएगा सेंट्रल शीथ. शीथ मतलब कवरिंग. तो बीच के दो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं उनका एक कवरिंग भी है और उसे कहा जाएगा सेंट्रल शीथ. तो वो मैं यहाँ पे मेंशन करती हूं. द टू सेंट्रल माइक्रोट्यूब्यूल्स are connected to each other by bridge-like structure and are enclosed by a central sheath. Are enclosed by a central sheath. तो ये जो central sheath है that is going to enclose the two central microtubules. This arrangement is known as 9+2 arrangement. बहुत इंपॉर्टेंट है. सीलिया एंड फ्लैजेला शोज विच अरेंजमेंट? 9+2 अरेंजमेंट. 9+2 अरेंजमेंट मीन्स 9 पेरिफेरल डबलेट्स and 2 centrally located microtubules. This is known as 9+2 arrangement. हम इसीलिए यहाँ पे 9+2 पे फोकस कर रहे हैं बिकॉज आगे हम जो सेंट्रियोल पढ़ेंगे उसका अरेंजमेंट होता है 9+0. तो आपको याद रखना है कि सीलिया फ्लैजेला का अरेंजमेंट क्या है? 9+2. 9 जो है वो पेरिफेरल डबलेट्स है और 2 जो है वो सेंट्रल है. नाउ all the peripheral doublets are also connected to the central sheath. So peripheral doublets are connected to central sheath or you can say central microtubules by the structure known as radial spokes. By the radial spokes. तो आपको ये जो दिख रहा है व्हाइट कलर के यहाँ पे, these are the radial spokes. So with the help of how many radial spokes will be there? 9 radial spokes होंगे और with the help of these 9 radial spokes, these microtubules even remain connected with the central microtubule. They remain connected with the central microtubule. अगर हम आगे बात करें तो all the doublets मतलब peripheral doublets are connected to each other by the structure called linkers. तो ये जो दिख रहा है यहाँ पे, ये व्हाइट कलर के ये जो कनेक्ट कर रहे हैं इन्हें हम क्या कहेंगे? दिस विल बी नोन एज द लिंकर्स. दे विल बी नोन एज लिंकर्स. ओके, सो यहाँ पे अल्ट्रा स्ट्रक्चर जो है वो खत्म होता है. तो अल्ट्रा स्ट्रक्चर में सबसे पहली चीज क्या याद रखनी है? सब कुछ आप सिर्फ डायग्राम से याद रख सकते हो. यू डोंट नीड टू मेमोराइज द होल थियरी. रिमेंबर जस्ट द डायग्राम एंड देन आफ्टर यू आर एबल टू राइट ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम इट. सबसे पहली चीज, बोथ सीलिया एंड फ्लैजेला आर एनक्लोज्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन. The central core of the cilia and flagella is known as axoneme. In the axoneme, there is presence of the parallelly arranged microtubules. In axoneme, there is presence of parallelly arranged microtubules. How many microtubules? There will be 9 pair of microtubule doublets. 9 pair of microtubule doublets and 2 centrally located microtubules.
The two centrally located microtubules will be connected to each other by a bridge, and they will also be connected and enclosed by a central sheath. Connected by a central sheath covering. The peripheral microtubules will be connected to the central sheath through the radial spokes. They are also connected to each other. Peripheral microtubule doublets are connected to each other by the presence of linkers. तो ये जो स्ट्रक्चर जिसमें से इमर्ज होता है वो स्ट्रक्चर जो है एक्चुअली ऐसा कहा जाता है कि सीलिया एंड फ्लैजेला दे ऑल्सो ओरिजिनेट वेरी सिमिलर टू सेंट्रियोल विच इज नोन एज बेसल बॉडी. तो बेसल बॉडी क्या है और उसके बारे में हम थोड़ा आगे के लेक्चर में जब हम सेंट्रियोल डिस्कस करेंगे तब हम बात करेंगे. तो अभी के लिए इतना आपको अल्ट्रा स्ट्रक्चर याद रखना है.